Dear participants, please mute your mics, and whenever resource person asks to unmute, then only please. Okay. Otherwise, it will create a disturbance during the lecture. Please. Yeah. सही एंगल पे है कि नहीं? एंगल सही है, देखिए। Okay. जी निशांत सर। Yeah. Okay. After sir. Okay. Sir, can you hear me? Yeah, you are audible, sir, very much. Okay. Let me introduce you again. Good evening, sir. Good evening, participants, and good evening, sir. It's a great honor to introduce our distinguished speaker, Dr. Aftab Ahmed Ansari, Associate Professor, Department of Education, AMU Aligarh. He is a highly accomplished academician with over 15 years of research experience in field of education. Dr. Ansari holds a PhD in education from Aligarh Muslim University, where his exceptional academic achievements earned him a gold medal in MA Geography and several other prestigious scholarships. Dr. Ansari has supervised more than 26 MA dissertations and PhD, reflecting his dedication towards mentoring the next generation of scholars. He has published more than 35 research papers, book chapters, and conference papers, contributing significantly towards advancement of educational knowledge. In addition to his research endeavors, Dr. Ansari serves on the advisory and editorial boards of national and international journals of repute, and he is a life member of esteemed organizations such as All India Association of Educational Research and Indian Science Congress Association. He is also contributed to the academic community as an academic counselor for several reputed institutions. Please join me in warmly welcoming Dr. Aftab Ahmed Ansari, whose wealth of knowledge and experience will undoubtedly enrich today's session. You are welcome, sir. Please continue start your session. Thank you, Nishant sir. Welcome, sir. Very good evening to all participants and Assalamu alaikum. I would like to thanks to the Director of HRDC and Dr. Faiza Abbasi ma'am, and of course Nishant sir for giving me this opportunity, rather to speak and give a speech on this topic, to discuss on this topic. This is a two-way process. I would always prefer to discuss with my participants, or because you are not a student, you are just like me as a participant. Most of you must be here more than my age. So with these words, I would start on the topic which is given to me, that students' diversity and inclusive education. Participant, this topic is very prominent and ambitious topic, especially when we talk about the NEP 2020. If you will see the overview of today's discussion, that is an introduction, that inclusive education, a global scenario I will give before you, an Indian scenario, the categories of India's disability. We will also have, and we will also raise few questions in between. Process of inclusion, that is historical perspective we will discuss here. What is education, inclusive education in real sense? We will have a long deliberation on this point. Integrated education versus inclusive education. We are always confused what is integrated education and inclusive education, and we will clear it today. Perspective of policy, various policies and programs that is framed by the national international bodies. We will see also it. Experience sharing session. I have invited a few students who are having some or other kind of disabilities, and they will share their own experiences pertinent to their academics as well as administrative point of view. In the last, we will also discuss the what NEP give the roadmap for inclusive education, and of course, we as a teacher, we as an administrator, what
should be our role as far as inclusive education is concerned. After this, I would like to just highlight the student diversity. Basically, the students who are in my class, in our classroom, they have these diversities. That is, normal students, and we are educating them. That is education for normal students, education for scheduled castes and scheduled tribes, education for women, education for minorities, education for Muslim women, education for Muslim minorities, education for rural population, marginalized section and various policies, marginalized section as NEP 2020, and education for person with disabilities. These are the diversities of the students. Taking into account and keeping all these points in a discussion in this stipulated time period, that is 1.5 hours, is not possible. So I have just chosen the one aspect, that is the last point, education for person with disabilities. And of course, it is very comprehensive, but I will try my level best to put before you all the aspects which are required for our day-to-day teaching learning process. अभी इससे पहले मैं सुन रहा था अतीक साहब का लेक्चर, and that was totally technical and technological, and that was also very much pertinent for this. And NEP 2020 give emphasis on those aspects also. But participants, the diversity as well as the inclusiveness is also one of the ambitious aspect of NEP 2020. And we must, as a teacher, as a faculty member, as a administrator, we must also deal all those aspects which comes under the student diversities. This is one of the quotes which I have started, that is, ignorance is a guarantee of marginalization. Levin 2000 quoted this point. Ignorance is a guarantee of marginalization. About 1 billion people, or 15% of the world population, experience some form of other disabilities, and disability prevalence in higher developing countries. You will find that disability is everywhere, but most of the disabled population we will find in developing countries. Nearly 2/3 of the individual with disability live in developing countries and sustain themselves with less than $1 per day. Meaning thereby that only the population who are having disabilities are living in the $1 per day expenditure. Persons with disabilities are more likely to experience adverse socioeconomic outcomes such as less education, poorer health outcomes, lower level of employment, and higher poverty rates. COVID-19, we all have faced this situation, continues to have wide-reaching impact across the globe. It is important to note how persons with disabilities are impacted by the pandemic. Of course, हम जब आम लोग जो कि बासलाहियत हैं और सारे हमारे अज्जा बेहतर हैं, हमारे सारी organs काम करने वाले हैं, we have been impacted a lot. Then what to think about, and just imagine about those who are having one or other type of disabilities, whether their education, their pandemic, हमारी education, हमारी तालीम से education system paralyze हो चुकी थी उस वक्त, और तो आप थोड़ा सोचें कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम हुई होगी उस टाइम. 98% of all students with disability lack access to primary education. They are socially, economically, and physically excluded and marginalized from the mainstream of society. एक लैंग 2007 की रिपोर्ट है, ये एक स्टडी किया था उन्होंने बताया कि 98% students, all students have disability, lack of access to primary education. And the second aspect, that people with disabilities face barrier in accessing services like health, education, employment, and transport, among others. People with disabilities are more likely to be unemployed than non-disabled people. Of course, if your university, if any institution try to hire any faculty member, any staff, it's always preferred to the normal people, exceptionally that if there is no any law and rule or barrier over there. In an Organization of Economic Cooperation and Development countries, the employment rate of people with disabilities is 44%. These are the data which I am just putting before you at a global scenario. Now you will see the Indian scenario. India needs growth, of course, but more importantly, it needs inclusive growth. Our Honorable Prime Minister, माननीय नरेंद्र मोदी जी अक्सर ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, and this is
Well, this is what we are talking about. India needs growth, but more importantly, inclusive growth. That is the basic philosophy. Sabka Saath, Sabka Vikas is inclusiveness. No Indian should be left behind. This means education for all and higher education, research and innovation that creates products and services which are affordable. So participants, if you will see the World Bank report 2004, you will find that India has the second largest education system in the world with 200 million children aged between 6 to 14 and around 225 million of whom are out of school. It is a general phenomena which has been put before the global as well as Indian scenario in 2004. And a study was conducted by Single 2005, bearing the mind that apparently only 35% of children are registered at birth, UNICEF 2004. Other estimated between 35 to 80 million out of school children. Now, Census 2011 reports that finding of a 22.2% disabled population. Just imagine India's 2.2% population in 2011. That is 2 crore 19 lakh 6,769 are challenged by. These are the physically challenged population. And this 2.2% population has been challenged by NGO in the field who believe that figure is too closer to the 6%. जाहिर सी बात है, we know that how the government data is being compiled and how the NGOs are keeping their data and collecting their data. So this is what the basic difference in the NGO. So इस 2.2% को एक NGO ने challenge किया, and according to National Family Health Survey 5 in 2019-2021 4.5%, यानी गवर्नमेंट की खुद एक एजेंसी कह रही है कि ये जो आबादी है वो 4.52% है इंडिया की पॉपुलेशन, और इसमें 63.28 मिलियन पीपल जो है वो डिसेबिलिटी या डिफरेंट डिसेबिलिटीज के शिकार है. इंडिया डिसेबिलिटीज, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया की डिसेबिलिटी है that is measured on 5 categories. That is sight, which we know that visually challenged, speech, that is dumb and deaf, hearing impaired, that is deaf people, locomotor, who are orthopedically challenged, and mental retarded or mental retardation, which exclude the disabilities of autism, those who are mentally retarded or mentally autistic. This is only 5 categories in which, on the basis of which India give a certificate, or you can say the that is recognized disability as far as Indian disability is concerned. In addition, you will surprised to know that a person has to be medically certified as having 40% or more of one of these disability in order to be counted as qualified as to get all the benefits of disability. अगर किसी बच्चे के पास, किसी पर्सन के पास 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मेडिकल काउंसिल है, या आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो उसको सर्टिफाई करते हैं, एंड देन ही इज एबल टू रिसीव all those benefit of disabilities. According to National Sample Survey 2002, only 45% of the disabilities population is literate, and 9% has secondary level education or higher. Yeah, this is what data talks about. A person has medically certified as having 40% or more than one disabilities. According to this is what the same one point I would like to highlight here. As far as the age is concerned, children aged between 0 to 19 years, 1.7% have disabilities, and further more boys, that is 1.81%, than girls, that is 1.58%. In India have a disability across the age group. So participant, this is what the highest number of disabled person in the form from the state of Uttar Pradesh. Nearly 50% of disabled person belong to one of the 5 states. यानी कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है डिसेबल पॉपुलेशन की उत्तर प्रदेश में है, और टोटल इंडिया का पॉपुलेशन देखें तो 50% पॉपुलेशन सिर्फ 5 हमारे सूबों में रहती है, रियासत में रहती है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 55.5%, महाराष्ट्र में 11.5%, बिहार में 8.69%, आंध्र प्रदेश में 8.45% एंड वेस्ट बंगाल में 7.52%. This is collectively around 50% population of India's disabled population.
And participants, this is the census data. This is not any other data, which is most reliable source of the India's data. Now you will see here again the further division of this disabilities. That total disabled population जो बीनाई तौर पे माजूर हैं वो 17.24%, जो बसरी तौर पे यानी सुनने के लायक नहीं है, सुन नहीं सकते हैं प्रॉपरली 19.46%, जो प्रॉपरली बोल नहीं सकते हैं वो 9.191%, and those who are physically or you can say the orthopedically challenged 14.12%, mental illness 8.3%, mental retardation 1.94%, and some or other have any other disabilities 19.89%, and 9.13% are those who have two or more than two disabilities. तो वो ये एक एज वाइज और डिफरेंट डिसेबिलिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है मैंने. ये इसको इस तरह से मैंने शेयर किया है एक पाई चार्ट में ताकि आप आसानी से समझ जाएं शेयरिंग का. Differently able and disabled population. One another aspect of India's population, because we know India, the most of the Indian population, that is more than 65% population lives in rural areas. Just see the scenario of rural areas as far as disabled population is concerned. Participants, rural areas constitute 71% population. This is Census India reports, and 29% resides in urban disabled population, urban areas. And just imagine the amenities and facilities and various support system in rural areas, or you can say the rural India and urban India. But what is paradox, that is urban population as far as disabled is concerned is less as well as rural population. In contrasting, the supporting system, or you can say the amenities and facilities are less in rural areas as compared to the urban India. So participant, again, there is challenge for rural disabled population as well as urban disabled population. Distribution of differently able population, state-wise, you will find that मैंने बताया था आपको कि इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन डिसेबल्ड वो 2.21% है. 15 states यूनिटी टेरिटरी प्रिवेलेंस disabilities, that is proportion of disabled person of the total population is higher than all India level. 15 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जो हमारा 2.25 की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, जिसमें कि among the state and union territories, Sikkim has the highest prevalence of disability, that is 2.98% of the total population of Sikkim, and Daman Diu, that is the union territory, is reported the lowest prevalence of disability, that is 0.9%. Participants, again the same data I'm repeating, so I'm skipping this. That is the highest number of disabled persons belong to these 5 states. ये मैं discuss कर चुका हूँ आपसे. At all India level, 7.62 of the disabled person belong to the age group of 0 to 6 years, that is Bihar, Meghalaya, Kerala. These three states have the highest population of 0 to 6 years, which is known as school going children. ये ऐसा एज होता है जिसमें बच्चों को स्कूल में दाखिला होता है, और वो इन 3 स्टेट में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट में पाए जाते हैं. और शायद इसीलिए आप इन सारे स्टेट का देखेंगे एक्सेप्ट केरला कि इनका सबसे ज्यादा लोवेस्ट इनरोलमेंट है, जैसे बिहार है, मेघालय है. और द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज होम फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन, डिसेबल्ड चिल्ड्रन between 0 to 6 years. Now, India is one of the few countries, participants just focus this point, that India is one of the lowest, few countries world over where the education for children with special needs or disabled children does not fall within the purview of human resource development, that is HRD ministry. I would just stop here and discuss about this point, that if you just go beyond this point, you will find that the purview of human resource development, actually the HRD ministry, Ministry of HRD of India, Government of India, basically discuss and deal about the development of human being, of Indian people, Indian population. But because of this point, India is one of the few countries world over where the education of children for disabled or special needs children does not fall
within the purview of human resource development. इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि आज भी हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि those who are disabled, they are human being. Otherwise, they have been brought under the umbrella of Ministry of HRD. लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक नहीं है. Even we are just finished quarter of the 21st century. Now, the prime focus of which is rehabilitation, not education. हमने कभी इनके ऊपर education के ऊपर ध्यान नहीं दिया. हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कैसे इनको rehabilitate किया जाए, कैसे इनको adjust किया जाए, कैसे इनको कहीं ना कहीं adjust कर दिया जाए. We are not bothered about their education and their training, their skill development, their higher education, for their research and development. This is another point. And the third point is that India estimated 40 million children in the age group of 4 to 6 years with physical and mental disabilities are being excluded from the mainstreaming of education. 40 million बच्चे ऐसे हैं जो 4 से 16 साल की उम्र में हैं और जो मेंटली और फिजिकली डिसेबिलिटी के शिकार हैं, उनको हमने बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम में आने से रोक दिया, बिकॉज दे आर नॉट रिसीविंग एजुकेशन. इफ एनीवन विल नॉट रिसीव द एजुकेशन, if I will not receive the education, I will be corner out. So in the same case is there for 40 million children in India. Now among the disabled population, 56%, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 56% population are female and 44% are 56% male and 44% are female. About 80% of India's population live in rural areas without provision of a special school. Majority, 69% of the civil population resides in rural areas and 8.1% and 8.1 crore in urban areas. Now the participants, you will find that an estimate shows that 8 million children out of school in India, that is MHRD 2009 का ये report है, अब तो और बढ़ गए होंगे. Many of whom are marginalized by dimension of the such as poverty, gender, disability and caste. इसके बिना पे उनको डिफ्रेंशिएट करके वो मार्जिनलाइज्ड है, आज तक मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में नहीं आ पाए. और इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही सारे लिस्ट ऑफ दी स्टूडेंट डाइवर्सिटी के बारे में बताया था. बट आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन दी डिसेबल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि सब पे बात करना इतना आसान नहीं है 1.5 घंटे में. एक एम्मा थॉम्सन साहब का कोट है, इस पर जरा गौर करें. बीइंग डिसेबल्ड शुड नॉट मीन बीइंग डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. आप ये नहीं कह सकते कि डिसेबल्ड है तो ये कुछ कर ही नहीं सकते. हो सकता है एक आदमी, एक बच्चा, एक चाइल्ड विजुअली चैलेंज हो, बट ही कैन थिंक. ऑफ कोर्स ही कैन नॉट सी, बट ही कैन थिंक. ऑफ कोर्स ही कैन वॉक प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ स्टिक. ऑफ कोर्स ही कैन टॉक प्रॉपरली with his mouth, with his tongue. But we cannot say that, we cannot be so judgmental that we can say, oh, he is blind, he cannot do anything in his life. No. John Milton was a very famous poet in English literature. He was blind. So participants, this is a very, I will say, बहुत ही मतलब suitable quote है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा कि being disabled should not mean being disqualified from having access to every aspect of life. हो सकता है एक aspect of life में वो disabled हो, but many of the aspect of life are there, and he will be very much expert and I will say the competent in other aspect of life. With this discussion, in my mind, these 3 questions arises, and I will just discuss this and try to answer this question in my further discussion. That is, what are the needs and challenges of the diverse type of differently abled students? क्या जरूरियात होती हैं, क्या उनके मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं, उसके जवाब हम लोग तलाश करने की कोशिश करेंगे. हाउ इन एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन. किस तरह से जो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है, जिसे हम शमूलियाती माहौल कह सकते हैं, किस तरह से ये प्रोवाइड कर सकता है एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो कि इस तरह के बच्चों को मिलाएगा. How quality education can be effectively and efficiently delivered for differently abled person. किस तरह से quality education जो है वो इनको भी provide किया जाए. सिर्फ educate कर देना, सिर्फ उनको उनकी बातों को उनके day to day activities के बारे में inform कर देना is not education. Education is something which make them able to fight in the mainstreaming of the society. So let's see
and this can only, excuse me, हाँ हेलो, ज्वाइन करिए बेटा। ओके, मैं भी दूसरा लिंक भेजता हूँ। हाँ, participant, this can only be possible through inclusive process or inclusive education. It can be discussed through this various era. एक जो ये डिसेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इंक्लूसिवनेस का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं कि आज ही शुरू हो गया है. It took various eras, centuries, I will say, because if you will find that the era of exclusion, the first era, which is known as era of exclusion, and this was the era was for various centuries when the discrimination and abandonment of such kind of children were common. इस तरह के बच्चे जबकि सोसाइटी में पैदा होते थे तो उसे फौरन ही मार दिया जाता था, क्रश कर दिया जाता था, अबॉन्डेंट कर दिया जाता था कि इस तरह की सोसाइटी में बच्चे पैदा होंगे तो इट इज लाइक ए कर्स ऑन सोसाइटी. ये तो एक वो है, एक बहुत बड़ा, ये इंसान हो ही नहीं सकते, ये कुछ और है. तो एक वो भी पीरियड इन लोगों ने देखा, डिसेबल्ड पॉपुलेशन ने देखा और उसको फेस किया और उससे गुजर के आगे बढ़े. सो दिस वाज द एरा. और मारने वाले कौन थे? हम ही आप थे, नॉर्मल पीपल, दोज वेयर लिविंग दोज पीरियड ऑफ टाइम. तो दिस वाज द एरा ओवर देयर और दैट टाइम. ग्रेजुअली जब सोसाइटी थोड़ा सा ग्रूम हुई, आगे बढ़ी, तो एरा ऑफ एक्सेप्टेंस हैव बीन स्टार्टेड. दैट इज द, हमने उनको एक्सेप्ट किया. चलिए एक्सेप्ट तो किया, बट यू विल सरप्राइज टू नो हाउ वी हैव बीन एक्सेप्टेड दिस. कैसे हमने एक्सेप्ट किया उनको? एक्सेप्ट ऐसे किया एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड यूज. हमने उनको एक अम्यूजमेंट की तरह यूज किया, अम्यूजमेंट की तरह यूज किया कि हम जैसे कि इंजॉय करने के लिए, या ये कह लीजिए कि घर में जैसे हम आजकल के जमाने में पेट पाल के रखते हैं, उस तरह से हमने उनको केज में रखा कि भाई ये बच्चा देखो एक इंसान का बच्चा है और ये देख नहीं सकता है, इसके एक हाथ है, एक पैर नहीं है, एक पैर है, दो हाथ नहीं है. इस तरह से हमने उन्हें केज में रखा. और जो हमारे गेस्ट आते थे, एंड दैट इज टू बी सपोज टू बी ए स्टेटस को, या फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, हम उनके यूज करते थे डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस के लिए, हम उन्हें यूज करते थे, उन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ करती थी. तो दिस वेर द अनदर एरा दैट इज नोन एज सेकंड एरा ऑफ एक्सेप्टेंस. तो हमने कैसे एक्सेप्ट किया? इस तरह से हमने उन्हें एक्सेप्ट किया कि कम से कम उन्हें जान से नहीं मारते थे. बट आई थिंक दैट वाज मोर पेनफुल. दैट वाज द सेकंड एरा. नाउ दैट वी हैव एंटर्ड इन द थर्ड एरा, दैट इज एरा ऑफ प्रोहिबिशन, that is legal discrimination and witchcraft. This was much more painful, I will say, कि हम एक इंसान को एक दूसरे इंसान से अलग कर रहे थे, वो भी कानूनी तौर पे. खासतौर से this period is known as the period of dark age in our history. The dark age का जो पीरियड था, उस पीरियड में हमने क्या किया कि इनको कह दिया कि भाई ठीक है, ये इंसान तो है, इंसान भी है, इंसान की तरह भी है, लेकिन ये समाज में नहीं रहेंगे, ये कहीं अलग रहेंगे. बिकॉज ये कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमारे सोसाइटी में किसी ने कोई बुरा काम किया होगा, उसका ये एक नतीजा है, ये कर्ज है, एक अभिशाप है, पाप है. और ये एक, जैसे वो मानते हैं ना कि जैसे क्या कहते हैं कि एक पुराने जन्मों का ये फल है जो हमें अब मिल रहा है, तो हम इसे अलग कर देंगे या कहीं दूर हटा देंगे, या आप कह दें कि इनको हम सोसाइटी से अलग रखेंगे, दूर कहीं कैद करके रखेंगे. बट इट वॉज लीगली डिस्क्रिमिनेटेड. और ये कह के कि ये तो कोई असर है, कोई भूत और प्रेत, इस तरह की बात है, तो हमने इसको इस तरह से प्रोहिबिट कर दिया. बट अगेन सोसाइटी का काम है चलते रहना, आगे बढ़ते रहना. समाज का काम है कि सोशलाइजेशन होती रहना. तो एक फोर्थ इरा आया जिसमें थोड़ा सा हमने इनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और वो इंस्टीट्यूशन था ऑन द बेसिस ऑफ सिंपैथी. एक ऐसी सिंपैथी जो इन्हें एसाइलम तक ले आई, जो इन्हें अनाथालय तक ले आई. और वो इस तरह के सारे बच्चे किसी शहर में या किसी एक खास शहर में पहुंचा दिए जाते थे और वहां पे उन्हें रख दिया जाता था. और एक दो अटेंडेंट, मेंटर या आप जो भी कह लें, उस तरह के लोग होते थे जो उनको एक दो वक्त का खाना दे देते थे. बस वो एक इंसान की शक्ल में जिंदा रहते थे. एंड दैट इज एरा इज सपोज टू बी नोन एज सिंपैथी एंड असाइलम, एरा ऑफ सिंपैथी एंड असाइलम, क्योंकि एक पूरी तरह से सोशलाइज कर दिया गया. ग्रेजुअली सोसाइटी ग्रोन अप, लोग पढ़े लिखे कुछ आगे बढ़े. देन वी हैव स्टार्टेड द एरा ऑफ आइसोलेटिंग सेटिंग. दिस एरा, दैट इज आइसोलेटेड सेटिंग एरा,
is known as special schools concept. इसमें एक स्पेशल स्कूल का कॉन्सेप्ट आया और हमने इनको इन ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल खोला, एक शहर में या कई शहरों पे या किसी एक बड़े शहर में, जहाँ पे इस तरह के बच्चों को हम रखते थे और स्पेशल ट्रेनिंग देते थे. एंड व्हाट वेयर दो स्पेशल ट्रेनिंग? दो स्पेशल ट्रेनिंग वेयर दैट दे कैन डू देयर ओन वर्क जस्ट एनफ, कि हम उन्हें इतना सिखा दें कि वो अपने कपड़े पहन लें, अपने चीजों को समझ जाए, अपनी जगह को समझ जाए, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएं और अपने काम को कर लें अंडर दी सम ऑब्जर्वेशन. तो दिस वाज द आइसोलेटेड सेटिंग एरा, और ये काफी दिनों तक चलता रहा. इस तरह की सेटअप में ऐसे बच्चे, ऐसे लोग पलते रहे, बढ़ते रहे. ग्रेजुअली जब कुछ एनजीओ और सोशल एक्टिविस्ट ने आवाज उठाना शुरू किया, एंड पर्टिकुलरली अमंग देम कुछ लोग जो एक्टिव हुए वो आवाज उठाए, तो इनको मेन स्ट्रीमिंग करने की बात की गई. और मेन स्ट्रीमिंग क्या की गई कि ठीक है भाई, चलिए अब ये स्कूल में पढ़ेंगे, हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन इनका क्लास अलग हुआ करेगा. एंड इवन यू हैव आल्सो रिमेंबर कि जब हमारी क्लासेस होती थी पहले, जब स्कूल में बचपन में, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, तो कुछ सेक्शन होते थे जिसमें कुछ ए सेक्शन जो होता था वो अच्छे बच्चे होते थे, बी सेक्शन में बहुत से खराब बच्चे होते थे, सी सेक्शन में बिल्कुल ही खराब होते थे, और अगर डी सेक्शन है तो फिर कहना ही क्या. तो दीज वेयर दी, और इसी तरह का एक सेक्शन होता था जिसमें स्पेशल टाइप के बच्चे होते थे, विजुअली चैलेंज, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, या फिर डम एंड डेफ बच्चे. तो इन तरह के बच्चों को एक अलग सेक्शन बना दिएगा. बट दिस इज नॉट मेन स्ट्रीमिंग, दिस इज नॉट इंक्लूजन. यहां तक भी हमने इंक्लूजन पे बात नहीं की. यहाँ पे कहीं इंक्लूजन की बात नहीं आई, ना कहीं इंक्लूजन करने की कोशिश की गई, और ना कोई इंक्लूसिव फिलोसफी हमने अडॉप्ट की. बट नाउ इन द लास्ट 20th century and the beginning of the 21st century, various voice has been raised from the national international bodies to include them, to welcome them in the same classroom. So era of inclusive setting have been started and they have been merged in the regular class. This era is not still in the process. Still we are hesitating to accommodate them in the mainstream of classroom. Participants, these are the 7 eras from where these students have crossed and come to, and still they are struggling to fight for their own right. That of course we are disabled, but not we are disabled in all the aspect of life. Of course we are orthopedically disabled, but we are not visually disabled. Of course we are visually disabled, but we are not dumb and deaf. So this is the struggle which is going on, and let's join the hand to hand with their fight, with their right. Now, what is inclusive education? Inclusive education means if the mission is education for all, the goal is all for all learners to include all. This is few lines which define the inclusive education, and in a detail, this inclusion describe much more than the acceptance of children with disabilities. सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना इंक्लूजन नहीं है. इन द मेन स्ट्रीम, अभी हमने बात किया ना कि आप उनको मेन स्ट्रीम क्लासरूम में बैठाइए, आपने बैठा दिया, दैट इज नॉट इंक्लूजन. इंक्लूसिवनेस डू नॉट फोकस ऑन अकोमोडेशन. उन्हें बैठा दिया, एडजस्ट कर दिया, अकोमोडेट कर दिया, वो भी इंक्लूसिवनेस नहीं है ऑफ दीज चिल्ड्रन. बट आर फोकस्ड ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल. Are we are restructuring our school system, schools, colleges, universities, and we are ready to accept them? This is inclusiveness. In inclusive program, specialized instruction and supports are provided to any students who is in need of support without labeling him or her as a disabled. Participant, in other words, you can say no discrimination is made among the able and disabled children. All children is sets of their disability are welcomed by making the same school, same class along their non-disabled peers. If we are able and if we are success to do this type of restructuring in our school system, college system, university system, then we are the real champion of the inclusive education. Participants, let's discuss and differentiate what is integrated and what is inclusive approach. Integrated approach are, we have the same point of that is 9, that education for some, हमने कुछ बच्चों को ग्रुप में बिठा के पढ़ा दिया, that is not inclusion.
कि भाई ये ब्लाइंड है चलो इनको अलग से पढ़ा दें, ये इंक्लूजन नहीं है। इंक्लूजन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे बैठे अगर क्लास में, वेलकमिंग ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रेन, वेदर दे आर विजुअली चैलेंज, दे आर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स and different type of other type of बच्चे, lingual, or there is no discrimination on the basis of caste, creed, culture, religion, region, etc. If we are abiding such kind of philosophy, then we are following the inclusive approach. If our approach is static, restricted, no, this is not inclusive approach. If we have flexibility, that is inclusive approach. Collective teaching, no, this is not inclusive approach. Individualized teaching, that is inclusive approach. लर्निंग इन आइसोलेटेड एरियाज, कि हमने रिमोट एरिया में बच्चों को, जंगल में सेटलमेंट है वहां हमने पढ़ा दिया, कुछ लोग आइलैंड्स पे रहते हैं, कुछ लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कुछ लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, हमने सारी फैसिलिटीज वहीं दे दी. ऑफ कोर्स यू आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी फैसिलिटी, बट यू आर नॉट फॉलोइंग द फिलोसफी ऑफ इंक्लूजन. वो वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं सीख रहे हैं, उसी इन्वायरमेंट में है. हाउ दे विल मेन स्ट्रीम इन द सोसाइटी, they will again they will have a lot of challenges when you will bring them in the mainstream of the society. Emphasis on subject oriented teaching, भाई ये डिसेबल्ड है, ये कैसे साइंस पढ़ लेगा, इसको तो कुछ खास सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए. Emphasis on child centered learning, क्या करना चाहता है, let them do. एक लड़का हमारे जानने में है, वो दोनों पैरों से माजूर है, लेकिन उसने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया, एंड नाउ ही इज डिप्टी मैनेजर इन बोकारो सिटी प्लांट. डायग्नोस्टिक एंड पर्सपेक्टिव, डायग्नोस्टिक अप्रोच अगर है, आप पता करके उसको पढ़ा रहे हैं, तो दिस इज इंटीग्रेटेड. इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको सब मौका दिया जाए. ये नहीं कि ये स्पीच कैसे देगा, ये तो ब्लाइंड है, ये खड़ा होकर कैसे बोलेगा, ये तो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है. डिसेबिलिटी व्यू, अगर आपने उसके डिसेबिलिटी को ही डिसेबिलिटी के नजरिए से ही देख लिया, तो वो इंक्लूसिवनेस नहीं हो सकता है. करिकुलर व्यू, जो वो पढ़ सकता है वो उसे पढ़ने दिया जाए. एंड लेवल चिल्ड्रन डिसेबिलिटी वाइज, दैट इज इंटीग्रेटेड. अपोज ऑल टाइप ऑफ लेवलिंग, कि किस टाइप का बच्चा है, किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस टाइप के डिसेबिलिटी से बिलोंग करता है. This is the basic difference between the integrated approach and inclusive approach. This is my humble differentiation between these two aspects, which always we as a teacher, we as a faculty member confuse. And now participant, the biggest barrier, क्या बैरियर है इनके मेन स्ट्रीमिंग में, इनके पढ़ाई में, इनके डिस्कशन में, इनके एजुकेशन में. I will just discuss all these points which are the biggest barrier. But before that, I have invited few of the physically challenged students from the different type of disabilities, and I have given and allotted them 5 to 6 minutes to share their own experiences as far as their academics are concerned, as far as their education are concerned. And I think that will be the first hand information before you, my dear faculty members. And in this continuation, I have invited these 4 students from the Aligarh Muslim University. That is Mr. Bilal Ahmed. I hope he has joined already. Bilal? Yes, sir. Okay. And Mohsin Mir Ibrahim, Ms. Neha Mehdi, Ms. Uzma Naz. These 4 students I have invited. I have also kept in mind that there must be diversity as well as the different type of disability. Bilal is orthopedically challenged. Mohsin Mir is also orthopedically challenged. Neha Mehdi is visually challenged, and Uzma Naz is a different type of locomotor disability. So first of all, I will invite Mr. Bilal. He has just passed out M.Ed from Aligarh Muslim University, and he is orthopedically challenged. Bilal, I just wish to hear before our esteemed faculty member of different university and colleges, what are your challenges? Just put before us in a short nutshell. Mr. Bilal, participant, please hear carefully. Listen carefully, I will say. Okay, sir. Good evening to all of you, and Assalamu alaikum. As you know that my sir is already introduced about myself. So
मैं यहाँ पे मैं जो अभी तक एजुकेशन गेन करने के दरमियान जो भी मैंने चैलेंजेस फेस किया है, जो मेरे सामने चैलेंजेस आए हैं, उसके बारे में मैं अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा। जैसे थोड़ा सा मैं बिलाल आप ये बताएं कि आप बाई बर्थ बचपन से ही आप ऑर्थोपेडिकली चैलेंज थे या बाद में हुए? थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल के फिर आगे बढ़े। नहीं, ये मैं बाद में हुआ हूँ। जब मेरी एज 2.5 या 3 साल की हुई है, उसके बाद फिर मुझे ये पोलियो हो गया था। ये मैं बाय बर्थ नहीं हूँ ऐसा। तो उसके बाद मेरी जो एजुकेशन शुरू हुई है वो काफ़ी लेट हुआ। करीब मैं 12-13 साल की एज के बाद जो मैं स्कूल ज्वाइन कर पाया हूँ, क्योंकि उससे पहले जो ये मुझे पोलियो हुआ था उसके ट्रीटमेंट में उसमें जो है मेरी फैमिली जो है, हमारे पेरेंट्स जो है स्कूल नहीं भेज पाए। लेकिन जब मैं स्कूल ज्वाइन किया है, स्कूल ज्वाइन करने के बाद जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करूँगा। श्योर कि श्योर। जैसे मैं फर्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन हुआ, फिर वहाँ से तो वो तो मेरा बचपन का टाइम था। बचपन में तो उतना चीज़ें नहीं समझ में आती है कि मतलब क्या हो रहा है, क्या चीज़ चैलेंजेस है हमारे लिए, क्या चीज़ में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमने जो है अपने हाई स्कूल तक का, इंटरमीडिएट तक का सफ़र तय किया। तो वहाँ पे उतना कोई खास बहुत डिफ़िकल्टी फेस नहीं किया गया, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ इंटरमीडिएट तक ये रही जो कॉमन रही स्कूल में गया। वो ये रहा कि प्रॉपर क्लासरूम का अरेंजमेंट ना होने की वजह से जो भी क्लासें होती थी वो जो है बाहर हुआ करती थी। तो कोई क्लास एक जगह पे हो रही है, कोई कहीं और हो रही है, कोई कहीं और हो रही है, तो इसमें जो है विजिट करने में एक तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में इनरोल हुआ यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। ग्रेजुएशन में जब यहाँ मैं आया तो एक मेन सब्जेक्ट होता है, फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं, तो सारी क्लासें जो है एक जगह नहीं होती हैं। एक क्लास यहाँ तो एक क्लास किसी और रूम में, एक क्लास कहीं और। तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए। तो स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ आया तो मुझे इतना पता नहीं था कि यहाँ पे कैसे क्लास अरेंज होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं ग्रेजुएशन किया है, मैं अपना वो इंग्लिश लिटरेचर में किया है। तो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के चेयरमैन के पास गया और उनसे मैंने शेयर की अपनी प्रॉब्लम की, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे सामने और मैं क्लास को अटेंड करने में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। और टॉप फ्लोर तक मुझे क्लास करने जाना होता था आर्ट्स फैकल्टी में। और उस टाइम लिफ्ट की फैसिलिटी नहीं थी आर्ट्स फैकल्टी में, खैर अब तो लग गई है लिफ्ट। तो मैं वहाँ पे गया इंग्लिश डिपार्टमेंट में, चेयरमैन के पास मैं बात किया कि मैम ऐसा प्रॉब्लम है और ग्राउंड फ्लोर पे क्लास अगर हो जाए तो मेरे लिए आसानी होगी। तो ये काम थोड़ा सा उनके लिए भी मतलब चैलेंजिंग था। इस चीज़ को वो कर नहीं सकती थी, था थोड़ा सा मुश्किल काम था ये। लेकिन उन्होंने मतलब जिस तरह का बिहेवियर दिखाया वो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा मेरे ऊपर। कि उन्होंने एकदम सिरे से बहुत ही अ, अलग ही इंटेंशन में बात करके और वहाँ से सीधे मुझे हटा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई सिंपैथी नहीं दिखाई उन्होंने, और ना ही किसी तरह का, एक होता है कि मोरल तरीके से इंसान बात करे, वो भी नहीं रहा। फिर मैं वहाँ से निकला और चला आया। फिर किसी तरह मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यहाँ पे। फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया, तो मास्टर्स में तो एक क्लास फिक्स हुई और वहाँ पे सारी क्लासें हुई। उसके बाद फिर मैं यहीं से बीएड किया। तो बीएड में मेरा एडमिशन जो हुआ वो मल्लापुरम सेंटर पे हुआ, जो कि एक वो भी बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए कि मल्लापुरम में जाकर के बीएड करना, क्योंकि वो पूरा कैंपस हिली एरिया में है। और हिली एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ने और उतरने का जो सीन है वो बहुत ही चैलेंजिंग है। लेकिन वहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर्स और टीचर्स थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही सिंसियर थे। इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कभी मुझे वहाँ रियलाइज़ नहीं होने दिया कि
मैं मतलब किसी चीज़ के लिए यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के लिए मैं परेशान हूँ। ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने फेस किया। उसके बाद फिर मैं एमएड के लिए यहाँ पे एंट्रेंस दिया, तो यहाँ भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। फिर एमएड मैंने क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे एमएड भी मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक नई चैलेंजेस जो अभी मेरे सामने आई है वो ये आई है कि मैं जैसे जॉब के लिए अप्लाई किया बहुत सारी जगहों पे, और स्पेशली ये मैं प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा मैंने पाया है कि जैसे जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट है, तो उनके लिए ये है कि ये देख रहे हैं कि कौन फाइन लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कौन सीवियर है। जो फाइन लोकोमोटर है तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अगर वो सीवियर कंडीशन में है, दोनों पैर से ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, तो बड़ा मुश्किल है कि उसका कहीं पे सिलेक्शन इस तरह का हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमने में दो एक जगह ये भी पाया है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें भी ये चीज़ें है। ऑन पेपर तो नहीं है, लेकिन जो वहाँ की सिलेक्शन कमेटी है उनका ये माइंड सेट है कि ये बहुत ही काफ़ी सीवियर कंडीशन का लोकोमोटर है, तो ना ही लिया जाए तो बेहतर है। तो ये भी एक चैलेंजेस आ रहे हैं इस टाइम, जो मैंने खुद फेस किया है। ये हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। तो ये हमारे सारे चैलेंजेस रहे अभी तक के, जो मैंने एक कंसाइज वे में आप लोगों के सामने शेयर किया। और Thank you, Bilal. मैं जो एक बात और आपसे पूछ लूं, सब लोग सुन रहे होंगे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग टीचर से? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट स्पेशली ड्यूरिंग एकेडमिक्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टीचर से सर एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है टीचर से रिलेटेड कि मैं मतलब पूरा याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कहा जाता है कि टीचर एक नेशन बिल्डर होते हैं। नेशन को क्रिएट करने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और टीचर जो है हर कंट्री के फ्यूचर को जो है बनाते हैं। ये चाइल्ड जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, ये देश के फ्यूचर होते हैं किसी भी कंट्री के। तो इनको आप जिस तरह से जिस वे में आप इनको ट्रेंड करेंगे, टीच करेंगे, वो उसी तरीके में जाएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि टीचर ही इन सारी चीज़ों को, इन सारी दुश्वारियों को, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन को, टीचर ही एक ऐसी मतलब रास्ता है जो इस चीज को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है बिलाल जी। नेक्स्ट जो है वो मोहसिन इब्राहिम मीर। हैव यू जॉइन मोहसिन इब्राहिम मीर? शायद ये भी ज्वाइन नहीं किए हैं। नेहा मेहदी? Yes, sir. I have नेहा joined, मेहदी, sir. प्लीज। Participant Neha Mehdi is pursuing B.Ed from Department of Education, AMU Aligarh, and she is visually challenged. I will just request her to say her challenges as a visually challenged, as a female student of the department and a training course. Neha Mehdi, please say. Thank you, sir. Thank you so much. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. My name is Neha Mehdi and I belong to District Amroha, Uttar Pradesh. I am pursuing B.Ed from Aligarh Muslim University, Aligarh. Firstly, I would like to thank Professor Aftab sir. Thank you so much, sir, to give this opportunity to me. Now, firstly, I would like to introduce myself more. Uh, Actually, I am late visually impaired. I mean, I lost my vision late when I was 13 years old. उस वक्त मेरी एक डिजीज़ के वजह से, ड्यू टू अ डिजीज़, आई लॉस्ट माय विजन। तो मैं आप लोगों के सामने फर्स्टली वो अपना जो फ़ेज़ रहा और जो आज मैं फ़ील करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह से मैंने नॉर्मल लाइफ़ एज़ अ साइटेड पर्सन और एक चैलेंजिंग लाइफ़ एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आई एम लिविंग इन। तो मैं आप लोगों को दोनों एक्सपीरियंसेस फर्स्टली एक्सप्लेन करना चाहूँगी।
तो जब फर्स्टली जो चैलेंज मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा आया व्हेन आई लॉस्ट माय विज़न वाज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। आई मीन जब मैंने अपनी साइट को लॉस किया तो उस वक़्त हमारे नेबरहुड में, हमारे रिलेटिव्स में कहीं पे भी मतलब दूर-दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था जो कोई विज़ुअली इम्पेयर्ड हो और फिर ये पता हो कि कोई विज़ुअली इम्पेयर्ड पढ़ सकता है या फिर अपनी लाइफ़ को किस तरह आगे चला सकता है। वही चीज़ जो एक सोशल कंस्ट्रक्ट भी है और सोसाइटी में वही चीज़ ज़्यादा मानी भी जाती है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की कमी है तो आप एक कोने में घर की अपनी ज़िंदगी को बुझा देते हैं। वही कॉन्सेप्ट मेरे साथ भी था लेकिन फ़ॉर्च्युनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत की और उन्होंने मेरे लिए पढ़ाई का रास्ता निकाला। तो मेरा ट्रीटमेंट उस वक़्त एम्स में था। इनफैक्ट हमको ये भी नहीं पता था कि हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ या मैं कुछ कर भी सकती हूँ ज़िंदगी में। लग रहा था कि अब तो सब ख़त्म हो गया है और ये कुछ नहीं हो सकता है। और मुझे लगता था कि मैं उस टाइम बहुत छोटी भी थी, तो मुझे लगता था कि ये सबके ही साथ होता है नॉर्मली, क्योंकि सबको उस टाइम भी लोग स्पेक्टिकल्स यूज़ करने लगे थे। तो मुझे भी स्पेक्टिकल किया डॉक्टर्स ने, लगाने को कहा तो मैंने वो यूज़ किया कुछ दिन। फिर मेरी एक स्कूल टीचर थी एंड शी रियलाइज्ड कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है एंड शी रोट एन एप्लीकेशन टू माय पेरेंट्स। तब मेरे पेरेंट्स ने और नियरली उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया। फिर उन लोगों ने हमेशा मतलब मुझे पहले ट्रीटमेंट के लिए मेरा 2-3 साल इधर-उधर मतलब पूरा इंडिया मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिखाया डॉक्टर्स को, लेकिन मेरी एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका कोई ट्रीटमेंट अभी ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। तो वो चीज़ जो वो एक मोमेंट था, एक वो जो कुछ इयर्स थे ज़िंदगी के, बहुत डिसअपॉइंटिंग थे कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? आई मीन मैंने ही क्यों अपना विज़न लॉस किया? तो वो वक़्त बहुत मुश्किल था, लेकिन जब पता चला कि हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ, तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था पहले ही से। तो फिर मेरा एडमिशन एआईसीबी ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में हुआ। वहाँ मैंने 3 मंथ्स कोर्स किया, ब्रेल कोर्स उसको कहते हैं। तो जो अवेयरनेस है लोगों के बीच कि हाँ, हम लोग पढ़ सकते हैं। मेनली जो मेरा फ़ोकस है आई मीन जो लोग और भी डिसेबल हैं, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स जी हैं या लोग हैं, उन लोग के पास अपॉर्च्युनिटी है, दे कैन लर्न ईज़िली, बट हमारे साथ जो है हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमें कंप्लीटली गाइड करे कि हाँ, आप भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक हैं या फिर दूसरे लोग हैं जो डिफरेंटली एबल हैं, वो पढ़ सकते हैं। मतलब उनको इश्यू हो सकता है सोशल बुलिंग का या फिर और इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा इश्यू है दैट इज़ अ बिग इश्यू कि हम कैसे आई मीन अभी जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो यकीन नहीं कर पाते हैं कि मैं पढ़ती भी हूँ। मतलब मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? तो एक जो चैलेंज मेरी लाइफ में था ऑल ऑफ यू, ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि अवेयरनेस नहीं थी। तो मैं अपने इस वर्ड्स के थ्रू यही यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके इर्द-गिर्द जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ घर में रहते हैं और पढ़ाई का उन्हें नहीं पता है या फिर आप कहीं बाहर हैं, तो प्लीज़ उन्हें ये रास्ता दिखाएँ कि हाँ, वो पढ़ सकते हैं और एक बेहतरीन इंसान की तरह अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अपनी तो मैंने अलीगढ़ से ही अपना ब्रेल सीखने के बाद अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज से अपना 10th किया। उसके बाद वहीं से +2 भी किया। तो जब मैं स्कूल में थी तब तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं किए क्योंकि इट वाज़ कंप्लीटली स्पेशल स्कूल, तो वहाँ सारी फैसिलिटीज़ ऐसे उसी हिसाब से थी। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में एंटर करते हैं तब आपको लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो वही चैलेंजेस जो मैं फेस करती हूँ या मैंने किए हैं। तो फर्स्टली जो बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तो है हमारे पास अ, अ, लिमिटेड एक्सेस टू मटेरियल। जो लर्निंग मटेरियल है उनके लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड एक्सेस है। हम जो पढ़ना चाहते हैं एट अ टाइम आई मीन कोई बुक मुझे पता चली कि ये बुक इन्होंने लिखी है और ये बहुत अच्छी बुक है, तो हम उसको पहले बहुत मुश्किल से वो बुक मिल पाती है और उस बुक को पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है हम लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मेन कंसर्न है हायर एजुकेशन में वो यही है, मतलब जो मटेरियल है वो एक्सेसिबल नहीं है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी लाइब्रेरीज़ को ऑडिटरी स्किल्स में भी वहाँ पे थोड़ा चीज़ें हों जिससे कि हमें हेल्प हो पढ़ने में, रिकॉर्डिंग ऑडियोज़ हों या फिर अब तो इतना ज़्यादा टेक्निकल डिवाइसेज़ यूज़ की जा रही हैं पढ़ाई के लिए। तो यही मैं चाहती हूँ कि जो हम बीइंग एन इंडियन वी आर वेरी लैक बिहाइंड इन टेक्निकल
अप्रोचेस, तो हम इतना नहीं समझ पाते हैं टेक्निकली, हम इतना एडवांस नहीं हैं। तो अगर हम कंप्लीटली टेक्निकली एडवांस हो जाएंगे तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे फॉर एग्जांपल हम स्क्राइब यूज़ करते हैं, राइटर हमें प्रोवाइड किया जाता है जहाँ भी हम जाते हैं, या फिर हम खुद अपना राइटर लेकर जाते हैं। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन के तरह हमें मिल जाता है हमारा राइटर, लेकिन कई बार हमें हमारा राइटर या स्क्राइब हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होता है। आई मीन उसकी राइटिंग स्किल हम नहीं जान रहे होते हैं कि वो कैसे लिख रहा है, राइट। और फिर हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि हम अगर जो बोल रहे हैं वो स्पेलिंग लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा है सही। और अगर हम वर्ड टू वर्ड स्पेल किसी को करेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल टेक मोर टाइम। तो ये बड़ा इशू है जो राइटर स्क्राइब को लेके मैं फेस करती हूँ मेनली। और दूसरा है सर, अगर हम कोई डिपार्टमेंट चेंज करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के बाहर हम जाते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आती है नेविगेटिंग एनवायरनमेंट। हम जब जहाँ भी हम रहते होते हैं तो वो हमें जो जगह होती है हम उससे फेमिलियर हो जाते हैं और हम इजीली नेविगेट कर पाते हैं सारा जो एनवायरनमेंट होता है। या फिर कोई सडनली कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट जो हमारी नॉलेज में नहीं है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि नॉलेज में है, हमें पहले बता दिया गया है कि यहाँ पे नई चीज़ ये रखी गई है, आप ध्यान से निकलें। लेकिन माइंड में वो चीज़ नहीं रहती है, फिर वो चीज़ हमें नुकसान पहुँचा देती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। और एक चैलेंज जो है वो ड्यूरिंग क्लासरूम, वो मैं ये फेस करती हूँ कि कुछ-कुछ क्लासरूम्स ऐसे होते हैं जहाँ वॉइस इको होती है, तो वहाँ बाकी स्टूडेंट्स तो लिप सिंक से समझ जाते हैं टीचर्स की, लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है कि वॉइस इतनी इको हो रही है और हमें समझ नहीं आता है। और जो एक प्रॉब्लम ये है जो मैं पर्सनली फ़ील करती हूँ और फेस करती हूँ इन द क्लासरूम, वो स्पेलिंग प्रॉब्लम है। कुछ टीचर्स तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो भी वो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे उसको स्पेल भी करते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स सिर्फ़ लिखते हैं और हट जाते हैं। और जो मेरे पास बैठा होता है मैं कई बार उनसे स्पेलिंग पूछती हूँ उस चीज़ की, कई बार भूल भी जाती हूँ कि हाँ, सर ने क्या स्पेलिंग लिखी थी या मैम ने क्या स्पेलिंग लिखी थी। तो ये एक इश्यू है। और मेरा जो मास्टर्स है वो हिस्ट्री में है, तो हायर एजुकेशन में जो मैं फेस करती हूँ बड़ा चैलेंज वो ये है, मोबिलिटी क्राइसिस। मैं बहुत ज़्यादा विज़िट नहीं कर पाऊँगी, फील्ड वर्क नहीं कर पाऊँगी, तो ये एक बड़ा इश्यू है। दूसरा आर्किटेक्चरल स्टडी अगर हम करना चाहें, आई मीन विजुअल लर्निंग, वो हमारे यहाँ ज़ीरो है। हम विजुअल लर्निंग कुछ भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब जब मैंने अपना विज़न लॉस्ट किया उस वक़्त तक मैं 12 साल 11 साल की थी। तो जो चीज़ें मैंने उस टाइम देखी और आज जो चीज़ें नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली उन चीज़ों से रिलेट करके मुझे वो चीज़ बताती है कि देखो वैसे था, वो कुछ-कुछ इस तरह से ये है। तो मुझे सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। जो मैंने देखा था वो इस तरह कुछ-कुछ है। आई मीन जो एक माइंड में इमेज बनती है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो वो नहीं हो पाता है एक विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट के माइंड में। तो जो विजुअल लर्निंग है वो हमारी ज़ीरो होती है। आर्किटेक्चरल लर्निंग हम नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ हम टैक्टाइल कुछ चीज़ें हैं, नो डाउट। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की स्टडी करना चाहें तो हम फ्लोरा फाना जो उसका पैटर्न है वो हम टच कर सकते हैं, वो भी नीचे-नीचे। उसका जो डोम स्ट्रक्चर है या फिर उसका आर्क स्ट्रक्चर है वो हम नहीं कर पाएँगे। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो मैं फेस करती हूँ और कर रही हूँ। थैंक लेकिन यू। जी सर। थैंक यू नेहा वेरी मच। कुछ और कहना चाह रही थी क्या? नहीं सर, ठीक है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वेरी मच बोलने का फॉर मौका योर दिया। एक्सपीरियंस शेयरिंग। मेरे ख्याल से अब एक और हमारे पास थी। हैव यू शी हैज ज्वाइन उस्मा नाज। उस्मा नाज, Yes, sir. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ वेरी शॉर्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव ऑलरेडी सेड। आपके पास क्या है जो आप बता सकती हैं टीचर और टीचिंग के ताल्लुक से? यू आर, जी बताएं जल्दी। सर अपने चैलेंजेस की बात करूं तो वो सब मतलब मोस्टली सेम ही चैलेंजेस होते हैं, या आपको विजुअली चैलेंज की बात कर लें या फिर लोकोमोटर। और यहाँ मैं थोड़ा सा ये सारी बातें हो चुकी हैं तो अब हम खुद टीचर एक बनने जा रहे हैं, तो मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। जैसे कि अभी नेहा ने बताया बहुत ये क्लासरूम इसको कह लेंगे हम, क्लासरूम में जो भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी
कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद, कुछ मंथ बाद हम टीचर बनने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव बीएड, आई एम एमएससी मैथमेटिक्स एंड नाउ परस्यूइंग एमएड इन एएमयू। तो यहाँ मैं तो यही देख, जो चैलेंज मैंने अभी तक फेस किए हैं तो उसमें ये क्लासरूम चैलेंजेस हो जाते हैं। देन अपने हॉस्टलर जो बच्चे मोस्टली हॉस्टलर हैं तो हॉस्टलर के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यहाँ स्कूल की बात कर लें तो स्कूल में एक जैसे कि मोस्टली मैं गांव से बिलोंग करती थी तो मेरा स्कूल कम 5 से 6 किलोमीटर दूर था। तो उसमें हम यहाँ ट्रेवल वाला बहुत प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि जब छोटा बच्चा यहाँ जब स्कूल स्टार्ट करते हैं तो हम अपना चैलेंज फेस कर चुके होते हैं। आगे हायर एजुकेशन तक जाकर हम इतने बन जाते हैं कि कर सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा टीचर्स का हमें साथ मिल जाए तो बहुत बच्चा जो अपना सही वे पकड़ सकता है। मैं ये पॉइंट इसलिए क्योंकि मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मैं 12th में मेरा पीसीएम था, मैथमेटिक्स से थी। बट जब मैं अपना 12th पास करके यहाँ एएमयू आई, मेरा बीएससी में एडमिशन हुआ तो मेरा मैथमेटिक्स था। उसके बाद मुझे सब्सिडरी में एज अ फिजिक्स चाहिए, बट वो शायद मेरी डिसेबिलिटी की वजह से मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरा फिजिक्स लैब में मेरे टीचर ने मुझे एंटर ही नहीं होने दिया बिकॉज मैं डिसेबिलिटी, क्योंकि उनका सीधे सीधे वर्ड थे कि ये तुम कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बट मैं कर सकती थी। तो मेरे पास आज फिजिक्स होता अभी तक मैं अभी तक जॉब कर रही होती, बिकॉज फिजिक्स ना मिलने की वजह से मुझे स्टैटिक एंड इकोनॉमिक्स मुझे मिला। मैथमेटिक्स तो मेरा रहा क्योंकि उसके कॉम्बिनेशन में मुझे इकोनॉमिक्स मिला, जो कि मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैं कॉमर्स साइड से नहीं थी, मैं पीसीएम मैथमेटिक्स की थी। मुझे स्टार्टिंग से ये था कि मुझे मैथमेटिक्स ही करना है, मुझे बायो में नहीं जाना था। बट आगे चल के यही मैं एएमयू यूनिवर्सिटी की अब्दुल्ला की बात कर रही हूँ, जहाँ वुमेंस कॉलेज में मेरा बीएससी में एडमिशन तो मुझे मिल गया। मेरी मेहनत मैंने की, मैंने एंट्रेंस पास किया, मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ तक कि मुझे लग रहा था कि मैं अब मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे अपने सब्जेक्ट थे वो मुझे मिल ही नहीं है। मेरा केमिस्ट्री मुझे इतना फेवरेट मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मुझे लैब की वजह से नहीं मिला मुझे। फिर एकदम न्यू सब्जेक्ट मिले मुझे जो कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। तो ये हो गया क्योंकि एज अ टीचर उसके बाद अगर मुझे ये मौका मिल जाता तो शायद मैं कहीं और आगे अभी तक पहुंच गई होती, क्योंकि अभी तक मेरा एमएससी फिर मैंने किया जैसे जैसे, फिर मैंने मैथमेटिक्स क्योंकि मेरा एम था मुझे मैथमेटिक्स एमएससी करनी है, वो भी मैंने कर लिया। उसके बाद अभी मैंने फिर बीएड किया। बीएड के बाद अब मैं एमएससी के बेस पर मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मेरा कुछ रह जाता है, मेरा पीएचडी में नहीं हुआ, तो उसके बाद इसलिए मैंने फैकल्टी चेंज करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं साइंस मेरी फैकल्टी साइंस हुआ करती थी, अब मैं सोशल साइंस में हूँ, अभी मैं एमएड कर रही हूँ। बिकॉज सिर्फ एक टीचर की गलती ही कहेंगे या उतना अवेयर नहीं थे लोग, जैसे अभी नेहा ने कहा लोग अवेयर नहीं थे इस चीज़ से कि ये बच्ची कर्ज जब यहाँ तक पहुंची है तो वो कितना फेस करके आ चुकी होगी। तो हमें बैकग्राउंड देखना चाहिए। मेरा कहने का टीचर को बैकग्राउंड की, बच्चा जब यहाँ तक आया है उसने ये चीज़ की हुई है, मतलब मैं 12th से पीसीएम करके आई हूँ, मैंने 12th में भी लैब की होगी, तो उन्होंने ये सब पूरा बैकग्राउंड, क्योंकि माशाल्लाह से एएमयू यूनिवर्सिटी के मैं जो भी मुझे याद नहीं है, मैं प्रोफेसर या टीचर की बात कर रही हूँ, तो चलिए इतना मैम, हम कोई अवेयर जी, क्योंकि उतना अवेयर होना चाहिए टीचर को। मैं खुद ही अगर मैं टीचर बनूंगी तो मैं अवेयर रहूंगी कि हाँ ये बच्चा यहाँ तक पहुंचा है तो किसी बेस पर ही पहुंचा है। तो वहाँ मैंने भी लैब अटेंड की है, बट खैर वो हो गया मेरा। फिर उसके बाद यहाँ आती है सबसे बड़ी, जो अभी बिलाल भाई हैं, मैं मेरे सीनियर ही हैं, मैं भाई कहूँगी। बिलाल भाई ने भी बोला कि वो टाइम टेबल वाला थोड़ा मसला था, तो वो सबके साथ मसला प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हम लोकोमोटर वाले हैं तो स्टेयर्स वगैरह चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये इजीली चीजें हो सकती है टीचर के बेस पे, ऐसा नहीं है कि रूम्स अवेलेबल नहीं है। टीचर के बेस पर आज इजीली टाइम टेबल हम चेंज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इतना मतलब वही अवेयर नहीं, या लोग उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, वहां तक इतना सोचते नहीं है कि वो बच्चा कैसे कितनी प्रॉब्लम फेस करके क्लास करने आ रहा है या जो भी। तो उसके बाद जब मैं अपना ये चीज़ बता रही हूँ प्रॉब्लम कि मेरा टाइम टेबल कैसे चेंज हुआ, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा मैं फेस कर चुकी थी, मेरा माइंड सेट था कि नहीं मुझे कराना है। तो ऐसे नहीं हो रहा था। सडनली एक प्रोग्राम था हमारे जमीरुद्दीन साहब
वीसी सर हमारे वुमेन्स कॉलेज में आए, डायरेक्ट मैंने उनको बोला, वन डे मेरा टाइम टेबल चेंज हो गया। क्योंकि जो बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी टाइप के, पढ़ने वाले होते हैं, वो लोग कराकर मानते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों करें हम लोग, हम टीचर पर हम उसको समझे। मैं बस इतना ही कहूंगी, हम जिस बेस पर जितना हम कर सकते हैं, वो जो पॉसिबिलिटी है चेंजेस करने की उसको करें। अभी जो बिलाल अहमद भाई ने कही थी कि टीचर ने उनको मतलब नहीं, उनको इतना सिंपैथी से बोल ही देते कि नहीं बेटा हो नहीं सकता है, इतना इतना डीमोटिवेट हो जाता है स्टूडेंट, कुछ आगे वो बहुत पहुंच सकता है, तो वो मतलब उसका वे चेंज हो जाता है। मेरा वे चेंज हुआ है, मैं मैथमेटिक्स से थी, मैं सोशल साइंस फैकल्टी में हूँ, मुझे ये दुख है इस बात का। और यहाँ मैं बचपन की बात करूँ, जो चैलेंजेस होते हैं, अवेयर माशाल्लाह से मेरे भाई अवेयर थे, सब कुछ था, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। मैं ये भी यहाँ मैं एम यहीं की JNMC की बात करती, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ के डॉक्टर ने ये कहा ठीक हो जाएगा करके 6 महीने मेरी भाई मेरी मम्मी वहाँ पर वहीं पर रखे। बट मेरे साथ मेरा सही नहीं हुआ, मेरा जो पैर था, शायद कहीं दिल्ली वगैरह ले जाती तो मैं और बेटर हो जाती। अभी मैं AMU में ही मैं गिर गई, मैं और 100% लोकोमोटर हो गई हूँ। तो मैं तो इस चीज कहूंगी कि जितनी अब भी आप चैलेंज टीचर बनने जा टीचर, रहे हैं उस्मा, अब आप इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा, जो गलतियां आपके साथ हुई हैं वो आपके जैसे आपके स्टूडेंट्स के साथ ना हो। जी जी, क्योंकि हम इतनी हम कहते हैं कि ऊंचा मतलब ऊपर से बात करें या हम किसी और, क्यों भाई, जितना आपके पास पावर है उसका यूज कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि आप ऊपर बात करिए, भाई ऊपर कहाँ, आप आपके पास जो पावर है उसको यूज करके हेल्प करिए, हेल्प कर सकते हैं। मैं तो बहुत, बस इतना ही मैं कहूंगी। वैसे माशाल्लाह से सब सब चीजें, कुछ कुछ चीजें होती हैं प्रॉब्लम। Thank you very much, my dear students. Participants, I hope that you have heard first-hand experiences of these children. You know that Constitution of India ensures equality, freedom, justice, dignity of all individual, and implicitly mandate an inclusive society. ये ऐसा नहीं है कि इनको कोई आप अनड्यू राइट दे रहे हैं, अनड्यू फेवर कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। And there is no constitutional crisis for all, including person with disability. In the recent years, there have been vast positive changes. जैसा भी इन लोगों ने कहा कि हाँ बहुत सारे challenges हैं और बहुत सारे changes हुए भी हैं, challenges भी हैं और changes भी हो रहे हैं. It means we are in the process of inclusive society. Further, it has been realized that their condition may be more better if the following barriers may be removed. इन्होंने जो barriers बताए, मैंने उसी को थोड़ा सा समराइज किया यहाँ पे, कौन कौन से बैरियर हो सकते हैं। द मेजर बैरियर्स, और भी बहुत सारे बैरियर्स हैं जो मैंने मेंशन ही नहीं किए यहाँ पे, सिर्फ जो मेजर बैरियर्स हैं, स्कूल, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर, पॉलिटिकल बैरियर्स, फाइनेंशियल बैरियर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एज ए बैरियर। अब लेट्स सी हाउ दीज आर बैरियर्स। फर्स्ट, जो स्कूल और सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो बेसिकली नथिंग, दैट इज एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो बिलाल और जो ये उज़मा कह रही थी कि आप ठीक है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप बात तो ठीक से कर सकते हैं, एटीट्यूड तो आप बेहतर रख सकते हैं। समाज आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन समाज कम से कम बुलिंग तो ना करे। दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग बैरियर फॉर डिसेबिलिटी। बेसिकली ये दिल और दिमाग पे हिट करने वाली चीज होती है, ये वो बैरियर है। Attitudinal barriers faced by students with disabilities is physical and emotional bullying, which is a serious barrier to learning that can lead to isolation and closer to the possible inclusion. ऐसा भी हो सकता है कि इंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बच्चा इंक्लूजन की तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो ऐसे फैक्टर्स और बैरियर्स हैं जो हमें इनसे दूर कर देते हैं। As with society in general, it is important that consistent and strong advocacy must be given to them, considering the negative attitude and stereotype are often caused by the lack of knowledge. Of course, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हो सकता है कि नेगेटिव एटीट्यूड से ऐसा कुछ करते हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये दो चार चीजें हैं जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे इनके साथ बिहेव, कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। Physical barrier as far as concerned, lack of wheelchair ramps in disabled-friendly universities, college buildings, offices, mall, parks, playground, washrooms, and public transportation is the main difficulty has been identified by the several students with disabilities when going to school and public places. अभी बिलाल बता रहे थे ना
कि हमारे वहाँ फैकल्टी है उसमें लिफ्ट लग गई है। पहले लिफ्ट ऑफकोर्स नहीं थी उसमें, इनफैक्ट नहीं हुआ करती थी, और थर्ड फ्लोर तक बच्चे इस तरह के जाते थे, धीरे धीरे पहुंचते थे और धीरे धीरे उतरते हुए आते थे, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। नीचे भी 8-10 रूम है, क्लासेस वहां भी ऑर्गेनाइज की जा सकती थी। मोस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस रिक्वायरमेंट। ऐसी रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। दे आर नॉट, I will say that they're differently able friendly or disabled friendly. There is also lack of facilities like assistive device and to aid children with the particular type of difficulty. अब बहुत सारे ऐसे hearing devices आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, और जैसे डोर ओपन करने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, so that they can be facilitated and they can be brought into the mainstream of the society. Political barrier, how the politics is a barrier for mainstreaming of the society of disabled children. Participants, let's see policy makers who have unsound bias or opposing view on inclusive education. जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ही नहीं पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिवनेस क्या चीज है। Then what to talk about the program and policy and other aspect. And these obstacles in inclusive education consist a short list of factors that can be affect student disability. Further बहुत सारे factors हैं इसमें, कि हमारे politician जो है उनके बारे में आप जानते हैं, politicians की जो अपनी एक vision और mission है उसको भी हम जानते हैं अच्छी तरह से, और इस तरह से they are not even taking care of the normal population. How they can take care of the such kind of children and such kind of population? Only profound understanding of these factors and relevant issues that hinder the inclusion. सिर्फ यही एक सोल्यूशन है कि आप इसकी जो नॉलेज रखें और तब जाकर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और ट्रू इंक्लूजन, रियल इंक्लूजन को आप ला सकते हैं। फाइनेंशियल एज ए बैरियर, एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्स a big challenge to inclusion. In India's among the countries that have the low education for all index. India का जो education all का मिशन है, विजन है, वो दुनिया के जो कंट्रीज है ना उसमें सबसे लो इंडेक्स में आता है। It is so because we don't have sufficient fund to implement all these aspects, to restructure our curriculum, to restructure our buildings, to restructure our you can say the differently able friendly infrastructure. For that requires finance amount, handsome money. For inclusion, every institution would be required to make financial provisions for providing facilities like lift, ramps, barrier-free classroom, and of course modular toilet for disabled friendly. Technology could be used in the form of motion sensor to open the doors, use toilets and automatic door buttons for easier approach. Last, this factor and barrier is college university as a barrier. Have you just imagine how college university may be a barrier for disabled children? Yes, enrollment and admission. पहली बैरियर तो यही है कि आप किस बच्चे का एडमिशन करेंगे और किस बच्चे का नहीं करेंगे। इनका करेंगे कि नहीं करेंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्या आप इनको इनरोल करते हैं? मे बी देयर इज द प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज और वेरी आप कह सकते हैं कि मॉडल यूनिवर्सिटीज may allow them, but as far as the school education is concerned, traditional government school, college, university is concerned, they just deny on the first word. वो इनरोल ही नहीं करते हैं, कहते हैं अरे भाई इनका तो अलग से डेटा रखना पड़ेगा, अलग से रजिस्टर बनाना पड़ेगा, अलग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है कि इनको एडमिशन ही ना कराएं। इवन दे से दैट बगल वाला स्कूल ज्यादा अच्छा है, हमारा स्कूल खराब, आप यहाँ मत कराइए। लाइक दिस, आप अपने घर के पास ही करा दीजिए, वो स्कूल में करा दीजिए, मदरसे में पढ़ा दीजिए, किसी पाठशाला में पढ़ा दीजिए, चैरिटी स्कूल में पढ़ा दीजिए, बट दे डोंट अलाउ टू गेट इंटर्ड इन देयर स्कूल फॉर सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन। बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कि क्या दैट इज रिस्पॉन्डिंग फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ऐसा है कि प्रिंसिपल ऑफिस तक एक ऑर्थोपेडिकली चैलेंज बच्चा आसानी से पहुंच जाए, एक विजुअली चैलेंज बच्चा, प्रिंसिपल साहब कहाँ बैठते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, वाइस चांसलर साहब का ऑफिस कहाँ है, चेयरमैन कहाँ बैठते हैं, बैठती हैं, तो इसको भी रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। क्लासरूम साइज एंड पैटर्न, क्लासरूम का साइज कैसा है,
पैटर्न क्या है, एंट्रेंस पे क्या चीज है, कहाँ पे बैठना है बच्चे को. एंड द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कम्युनिकेशन, हाउ वी बिहेव एंड टॉक विद सच काइंड ऑफ स्टूडेंट. हमारा उनसे कम्युनिकेशन कैसा होता है. ऐसे बच्चों से तो हम पहली बात कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते. हम चाहते हैं कोई बात करने की जरूरत पड़े, अगर वो आता भी है तो कहता अच्छा ठीक है बेटा हम देख लेंगे, जाइए. वी डोंट इवन ट्राई टू लिसन देम प्रॉपरली. करिकुलम प्रॉब्लम, कुछ चीजें ऐसी एक्टिविटीज हमारे में शामिल हैं, वो बस है तो उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं. हम उसे थोड़ा भी रिस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चराइज नहीं करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा बेटा आपको ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, आप ये नहीं ये कर लीजिए. कुछ तो फंडामेंटली प्रॉब्लम है इनफैक्ट, और कुछ हम उसको रिजिड बना के रखे हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द चैलेंज इन पार्ट ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस. यूनाइट अनट्रेन्ड टीचर. ऑफ कोर्स जो टीचर्स की इस तरह की ट्रेनिंग हुई है, you are fortunate that you are participant of such kind of program organized by your university, that is Integral University, as well as HRDC MU Aligarh. And I would like to congratulate to the organizers for selecting this topic. And last, lack of guidance cell. कोई ऐसा हमारे पास गाइडेंस सेल ही नहीं है. मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ है कि नहीं इंटीग्रल में, बट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैज अ वेरी active guidance cell, that is disability unit by the University Grant Commission. And this is the direction of University Grant Commission, that each and every college, university must establish a guidance cell as well as disability unit. Now, if we'll say the policy perspective, participants, time is running very fast. I will just conclude very soon. National international policy perspective will see that Constitution of India declared 1951 formally affirmed the equality before law. Each and every policy, the first school of the deaf was established in Mumbai in 1883, the first school of the blind in Amritsar 1887, and 93rd Amendment, the Constitution of India has made education as a fundamental human right for children 6 to 14 years. Education Commission 1964-66 जो इस बात की शुरुआत ही इसी से करता है कि the destiny of any nation is being shaped in her classroom, and we are the owner of the classroom. The first suggested that education of handicapped children has to be organized anyhow, on not merely on the humanitarian ground, but also as an aspect of utility. इसलिए नहीं कि वो भी इंसान है इसलिए उनको पढ़ाया जाए, इसलिए कि वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है इसलिए उनको भी मेन स्ट्रीमिंग में लाया जाए. The National Policy on Education 1986 emphasized the removal of disparities and ensuring the equalization of educational opportunities for various types of disabled children. The Mental Health Act 1987, it talks about the replace the Lunacy Act 1912. The purpose this act was to regulate admission to psychiatric hospital for mentally ill persons. Rehabilitation Council of India Act 1992 deal with the development of manpower for providing the rehabilitation services and differently able person. Person with Disability Act, this is popularly known as PWD Act. This is the benchmark in the life of disabled person. 1995, 2009, 2006, and 2016, which provides equal opportunities, protection of right, and full participation in education, employment, creation of barrier-free environment, social security, etc. अब तो कानून बन गया भाई 1995 में. अब हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम इनको नहीं पढ़ाएंगे, इनको शामिल नहीं करेंगे, इनकी शमूलियत हमारी क्लासरूम में नहीं होगी. नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 और 1995 का एक्सटेंशन है ये. Recognize the person with disabilities are valuable human resource for the country and seek to create an environment that provides them equal opportunities, protection of their rights, and full participation of the society. And now the most important, that is PWD Act 2016, 5% reservation in seat of government and government aided higher education institution for person with benchmark. Benchmark means more than 40% disabled population को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 5% रिजर्वेशन मिलेगा. 4% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर certain person or class for person with benchmark disability. Yeah, this is the latest RPW Act which gives them these provisions. Now NEP, roadmap for NEP
what it talks. NEP is the first policy, and that last provision, new policy approved by the Union Cabinet, and that promotes barrier-free access to education for all children with disability. ये पहली पॉलिसी है जिसने बहुत ही लाउडली इस पे जोर दिया है. बहुत पहले भी पॉलिसी ने भी कहा था, लेकिन वो कहीं एक पैरा में कहीं बात कह दी, लेकिन उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकली इसको एम्फसाइज किया है. एवरी सिटीजन हैज द अपॉर्चुनिटी टू ड्रीम, थ्राइव एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन, एंड दे आर आल्सो सिटीजन. Not only, they are also the global citizen. Based on human rights approach, aims to creating an inclusive culture, achieving an inclusive society. This is the roadmap of NEP 2020. NEP 2020, barrier-free access to education for all children with disability. The policy ensured that education institution and its premises would be helped by providing resources to include children with disability. There must be barrier-free for disabled children. Your campus must be barrier-free. To appoint a special teachers who are trained to teach such students. And I believe that now you are trained today, and you can also handle such kind of students properly and delicately. The NEP 2020 seems promising and have taken into consideration various main points of RPWF 2016. Participants, it talks about the towards more holistic and multidisciplinary education. NEP 2020 talks about the equity and inclusion of higher education. Equity in school education as well as higher education, lack of knowledge, higher education opportunities, financial constraints, etc., which find a specific mention in NEP 2020. NEP 2020 mission focuses on implementing the steps for educational rehabilitation of impaired people, ensuring all the structures and amenities are wheelchair accessible and disable friendly. Establishment of self or person with disability, that is disability unit or the Divyangjan, which will include the representative from all the administration, instructors and students. And last but not the least, what should be our role? Participants, there are the few points which I would like to highlight. What we can play a crucial role. Of course, various policies, programs, and commissions and committee report have been framed, submitted, and put in the parliament, but that are wasteless, that are futile if the teacher are not ready to implement those aspects. अगर हम तैयार नहीं हैं उनकी पॉलिसी प्रोग्राम के रिकमेंडेशंस को अपने क्लासरूम में अपने दर्जा जमात तक लाने के लिए, तो सारी पॉलिसी प्रोग्राम या तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रह जाएगी या मिनिस्ट्रीज के अलमीराज में बंद पड़ी रह जाएंगी. So this is our responsibility, and we must shoulder this responsibility, that first and foremost our responsibility is in our classroom that we should identify and accepting the children with disability. सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, किस किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और उसको एज इट इज एक्सेप्ट भी करें. दिस इज द फर्स्ट बैरियर आई विल से हियर इन जस्ट इन एंटोनिम्स की एक बैरियर भी बन जाता है अगर हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आइडेंटिफाई नहीं करते. ठीक है, हमारे क्लास में पता ही नहीं कितने बच्चे विजुअली चैलेंज है और हम पढ़ाए जा रहे हैं, हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया. अगर हैं भी तो उन्होंने माना ही नहीं कि वो विजुअली चैलेंज है, हम इग्नोर करके उनको पढ़ा रहे हैं. So that is a matter of great concern. Acquiring knowledge about the inclusion. चलिए, हमने नहीं जाना आज तक कि अब क्या होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूसिव फिलोसफी क्या होती है, स्टूडेंट डाइवर्सिटी क्या होती है. तो वी आर द लर्नर, टीचर आर द बेस्ट लर्नर. तो हमें उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए. लाइक सच काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां से मिले हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए. हैविंग पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड द डिसेबल्ड स्टूडेंट. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, दे आर जस्ट रिक्वायर देयर साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट, दे जस्ट रिक्वायर योर सिंपैथी एंड एम्पैथी. दे आर नॉट बेगिंग, दे आर जस्ट आस्किंग देयर ड्यू राइट. क्योंकि ऊपर वाले ने, अल्लाह ईश्वर ने उन्हें भी इंसान पैदा किया, तो उनका भी उतना ही हक है जितना आपका और हमारा हक.
तो उन्हें भी हम ट्रीट करें एज ए पॉजिटिव एटीट्यूड, एज ए फ्रेंडली एटीट्यूड, विद द फ्रेंडली एटीट्यूड, and developing positive attitude between the normal and disabled children. This is all also our responsibility. ऐसा नहीं कि हमने तो बहुत अच्छे से एटीट्यूड पेश आ गए और हमारे जो क्लास में नॉर्मल बच्चे हैं उनसे कह दें कि भाई वो जरा बड़ा लड़का उसकी मदद कर दो, वो जो क्या कहते हैं आप स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं कि जो हैंडीकैप्ड है, जो अंधा है या जो इस तरह से है, उसको जरा देख लेना. It means we are again creating the discrimination. We are just inducting in the mind of normal children that their friends or peer group are abnormal. No, this is not inclusion, as I told you earlier. Introducing compensatory education. Yes, we can provide them some extra. जैसे कि हमने अभी नेहा ने बताया कि आप लिखते तो हैं लेकिन बोलते नहीं है, आप डायग्राम बनाते हैं लेकिन उसको इंटरप्रेट नहीं करते. दिस इज कंपनसेटरी एजुकेशन. आप कर सकते हैं, उससे नॉर्मल बच्चों को तो फायदा होगा ही होगा, ऐसे बच्चों को भी फायदा होगा जो हमारे क्लास में स्पेशल चाइल्ड है, इंक्लूसिव चिल्ड्रन है. Acquiring and enhancing the knowledge how to teach the disabled children. कैसे इनको पढ़ाया जाए, that is another topic. If chance will be given, I can deliver another lecture on this. कि कैसे इनको पढ़ाया जाए. इसका एक शॉर्ट टर्म तरीका ये जो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आप क्वालिफिकेशंस को बढ़ा सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिग्री कोर्सेज होते हैं, इग्नू बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कराती है, बहुत सारे डिस्टेंस मोड से, ऑनलाइन मोड से ऐसे कोर्सेज होते हैं, दैट कैन बी परसूड. Psychological empowerment of disabled children. Being a teacher of inclusive education, I am involved with such kind of students since last 15 years, and I find that they don't need any physical support. They don't need much physical support. They don't need much more your money, your compassion. They need psychological empowerment. आप कैसे उनको psychologically empower कर सकते हैं? That is, if you are doing this psychological empowerment to those children, कि आप कर सकते हैं, बजाय इससे कि आप रास्ता रोक के खड़े हो जाएं उनका, कि आप लैब में इंटर कर सकते हैं, आप क्लास में इंटर कर सकते हैं, आपको तीसरी मंजिल पे जाना ही पड़ेगा, आपको दौड़ना ही पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वो डबल उनके लिए साइकोलॉजिकल पेन हो जाता है. तो इस तरह की चीजें आप याद रखें कि साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज मच मोर फ्रूटफुल for their success, for their empowerment. Special care and attention is to be taken by sport teacher. एक अक्सर ये देखा जाता है कि स्पोर्ट टीचर्स इनको कुछ समझते ही नहीं. They always treat them as a ridicule कि ये क्या कर पाएगा, ये मैदान में क्या करेगा. अरे भाई मैं कहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर जब चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं वो फौरन रनर दिया जाता है. उन्हें भी कह रहे थे जाइए आप डिसेबल्ड लोग हैं, मैच के बाहर हो जाएगी. And he hit the ball. So if the Bilal can stand properly, if the Uzma can stand properly, so why not provide runner? हमारे स्पोर्ट टीचर को ये सोचने की जरूरत है, और अगर नहीं सोच पाए अभी तक तो आइंदे सोचेंगे, और सोचना चाहिए उन्हें. स्पेशल अरेंजमेंट फॉर देयर एग्जामिनेशन, डिसेबल्ड फ्रेंडली सिटिंग अरेंजमेंट. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन have provision to let them sit in the separate room for visually challenged students, because they have scribers, they have writer, and they speak loudly and then they write. So proper distance maintain करके हम उन्हें बिठाते हैं, and we give them extra 30 to 45 minutes to write their papers. So this is the provision by PWD Act. आपको देना ही है, अब आप मना भी नहीं कर सकते. और हम तो आधा पौन घंटा देते हैं, जबकि रूल अकॉर्डिंग टू PWD Act 30 minutes per hour है. 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा देना है उनको. Collaborating with the medical and psychological panels, social workers, parents and special faculty. If the child is having any special problem, you inform the parents, you provide the special faculty if you have in your department, in university, in your college, or refer to the psychological panel for their counseling, for their individual counseling. Parent guidance and counseling and public awareness program through various college university activities. That is one of the aspects that we always deal the disabled children. We never discuss about with the parents about their problem. हम कभी पेरेंट को इनवाइट करते ही नहीं है, उनके पेरेंट को डिस्कस करते ही नहीं कि आपके बच्चे में क्या सलाहियत है, क्या खूबी है,
क्या अच्छाई है, क्या टैलेंट है। हम हमेशा ही बताते हैं कि हाँ ठीक है, चल जाएगा, कुछ कर लेगा, कुछ कुछ तो कर ही लेगा। We never say that your child may become the जॉन मिल्टन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के डिसेबिलिटी में मुब्तला तो बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचे। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट एंड डायग्नोस्टिक टूल्स, बहुत से हम अचीवमेंट टूल कर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों में किस तरह की इंप्रूवमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो हमारी टीचिंग मेथड को चेंज करने की, हमें अपनी स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, हमें अपने थिंक और रीथिंक करने की जरूरत है। एडॉप्टेशन इन इवेल्युएशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जब हम इवेल्युएट करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसका राइटर कोई और था, स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसने बच्चे ने गलती नहीं की है, राइटर की गलती है। हैंड राइटिंग पुअर है तो नेहा की और इनकी गलती नहीं है, ये तो बच्चे जिसने लिखा उसकी गलती है भाई। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय डियर फैकल्टी मेंबर, celebration of disability day, that is every year of 3rd December, organize various events in your institution। आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एंड दैट में बी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, नेशनल डिसेबिलिटी डे, ये आप ऑर्गेनाइज करें और इस दिन अवेयरनेस कैंपेन करें। 26 जनवरी और 15 अगस्त तो बहुत ही हम खुशी से मनाते हैं, इस दिन को भी खुशी से मनाना है, क्योंकि वी हैव मोर देन पॉपुलेशन ऑफ 2 इंडियाज कम्युनिटी। भारत की जो 2-3 कम्युनिटी है जिसे हम सिख, जैन, बुद्धिस्ट कहते हैं, उनसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन हिंदुस्तान में। तो हम गुरु गोविंद सिंह मना सकते हैं, ईद उल अजहा मना सकते हैं, शब बारात मना सकते हैं, क्रिसमस मना सकते हैं, तो डिसेबिलिटी डे क्यों नहीं मना सकते हैं? बिकॉज दिस इज देयर ड्यू डिमांड, ड्यू राइट, ड्यू रिस्पेक्ट, एंड देयर डिस्कशन शुड बी I think that there must be discussed about their challenges and to aware the society, to aware the people, to aware the citizens of India, so that they can be mainstream in the society. With these words, participants, if you have any question, any query regarding this topic, you are most welcome, and most welcome if you will give some suggestion regarding this topic. Thank you very much. Nishan sir. Thank you very much, sir. It is such an informative and eye-opening sessions, and the testimony by the differently abled persons are really given entirely new angle of how we teach and learn. So I think what I can say, the best I can thank you very much, sir. And all the participants are flooding with the messages and claps. I think that's itself explain about your session. So thank you very much. And it is such a wonderful and memorable session. कोई सवाल नहीं? We do have here at Integral University, we do have facilities for differently able students, like toilets, ramps, lift, etc., and tactile marking also. But is still a lot required. Yes. And I have certainly, visited your university, sir. I know your university is very beautiful. yeah, certainly, we need your guidance. How to be more responsive for the disabled friendly student education. Thank you very much, sir. And I think we should dear participants, if you have any question, then you can ask, or we should wind up for today, and we will meet tomorrow at 3:45 again, and we will be having the session of Professor Muhammad Atiq, the same resource person which we have today. So we will be discussing few more things, and I think that's all for today.
So, happy learning. Thank you, Jishan sir. May I Yeah. leave now? And sir, yes, sir. Thank you. And surely, if you if you have any plan to come Lucknow or do visit, let us know and do visit the integral. Yes, inshallah, sir. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you very much, sir. Participant, you may leave, and we will be joining tomorrow again, inshallah. Thank you, sir. Okay. Okay, Mohit sir. Thank you, sir.